Hello students, in our previous video we saw information about First World War, Second World War and Cold War. In this video we are going to study the effects of Cold War. Actually there are various types of effects of Cold War, but some effects we have to consider. Out of them, the first one effect is creation of military organization. When we think about this effect, both America and Soviet Union were friends in Second World War. But after Second World War, both countries became competitors for becoming superpower. So far as they started increasing their impact on world. For that they created their own military organizations, like America created NATO, North Atlantic Treaty Organization, and Soviet Union created Warsaw Pact. So such type of two military organizations were created by these superpowers. So this one the most important effect of Cold War. Now we will see next one effect, that is bipolarization of the world. Bipolarization means dividation of world into two parts. Actually on the screen we can see one logo indicates Warsaw Pact and another logo indicates NATO, that means North Atlantic Treaty Organization. So such type of two groups were created on international level, and some countries they were becoming the part of NATO and some countries were becoming the part of Warsaw Pact. Means the western side's country of Europe were becoming the part of NATO and the countries from eastern side were becoming the part of Warsaw Pact. So Europe was divided into two blocks. One was NATO, another was Warsaw Pact. So such type of world was divided into two groups. So far as this is another effect of Cold War, world was divided into two parts. Even America and Soviet Union were assuring to these member nations for their security. So far as world was divided into two groups. This is called bipolarization. When we think about unipolarization and multipolarization, when there is single country which is superpower in the world, at that time there is unipolarization. When there are two superpowers, at that time we can say bipolarization. When there will be many superpowers in the world, at that time we can say multipolarization. So such type of terms are there: unipolarization, bipolarization and multipolarization. When we think about some other effects of Cold War, before that we have to understand the communist revolution. Actually that communist revolution has taken place in Russia in 1917. When we think about the ideology of Russia, Russia's ideology means Soviet Union's ideology was socialistic ideology. When we think about the ideology of America, it was different. It was capitalistic ideology. So when we think about the differences between America and Soviet Union, there were so many differences were there, like ideological differences, then some member countries were also from eastern and western side. So many differences were there. Even their government was also different. So there are so many differences are there between Russia and America. Those differences we will see here. Here on one side USA is there, United States of America. On another side Soviet Union, USSR. So such type of classification is given here. On first one point we can see America has capitalistic economy and Soviet Union has socialistic economy. Then America has democratic government but Russia has
single party system, and only single party system or that same party can lead that government. Such type of government system is there. And in America, we can say the western side countries of Europe, they became the supporter of America, and the eastern sides country of Europe, they became the supporter of Soviet Union. So such type of differences are there between America and Russia. This same point I will explain in Hindi. यहाँ पे दो कैटेगरीज की है हमने, एक में अमेरिका को रखा है और दूसरे में हमने सोवियत यूनियन को रखा है। तो अमेरिका में जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करता है और वहाँ पे कैपिटलिज्म है। सोवियत यूनियन के पॉइंट में हम देखेंगे तो वहाँ पे सोशलिस्टिक सिस्टम को फॉलो किया जाता है और वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो सिंगल पार्टी सिस्टम है, मतलब एक ही पार्टी को वहाँ पे गवर्नमेंट बनाने का और गवर्नमेंट को चलाने का अधिकार होता है। दूसरे में हम देखेंगे कि अमेरिका जो है वो कैपिटलिज्म को फैलाना चाहता है और सोवियत यूनियन जो है वो सोशलिज्म को फैलाना चाहता है। उसके बाद जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है वो अमेरिका के साथ में चले गए थे और जो ईस्टर्न साइड के जो कंट्रीज है यूरोप के वो सोवियत यूनियन के साथ में चले गए थे। तो इस तरीके से डिफरेंसेस यहाँ पे देखे जा सकते हैं अमेरिका और रशिया के बीच में के। उसके बाद नेक्स्ट वन इफेक्ट हम देखेंगे वो है आर्म्स रेस। अभी इस आर्म्स रेस में हम देखेंगे कि रशिया और अमेरिका इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा था अलग अलग तरीके के वेपन्स बनाने के बारे में। अमेरिका ने कोई नया वेपन या मिसाइल बनाया तो उधर रशिया अलग तरीके का वेपन या मिसाइल बनाता था। तो इस तरीके से दोनों भी कंट्रीज के बीच में एक तरीके की राइवलरी, एक तरीके का कंपटीशन चल रहा था और इसी कंपटीशन के बीच में दोनों कंट्रीज जो है वो अलग अलग वेपन्स एम्यूनिशन क्रिएट करने में लगे हुए थे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इफेक्ट है कि जो कोल्ड वार के कारण हुआ था। यहाँ पे फर्स्ट वन पॉइंट हम देखेंगे, द सुपर पावर स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग आर्म्स ऑन अ लार्ज स्केल टू आउटस्मार्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे से स्मार्ट बनने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए यहाँ पे आर्म्स रेस जो थी वो दोनों कंट्रीज के बीच में चल रही थी। दूसरे पॉइंट में हम देख सकते हैं कि देयर स्टार्टेड राइवलरी टू मेक मोर एंड मोर डिस्ट्रक्टिव वेपन्स एंड टू एक्वायर द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द सेम, मतलब राइवलरी चल रही थी, कंपटीशन चल रहा था वेपन्स बनाने में। तो इस तरीके से आर्म्स रेस ये भी एक इफेक्ट हम देख सकते हैं कि कोल्ड वार के कारण हुआ था। नेक्स्ट वन इफेक्ट हम देखेंगे, क्रिएशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब कुछ जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उन्होंने अपने रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाना स्टार्ट किया था। तो वो जो थे वो इस राइवलरी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाना स्टार्ट किया था। अब इसमें का एक एग्जांपल देखेंगे तो एशियन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस ये कंट्रीज इन्वॉल्व थे और उन्होंने अपनी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। अब उस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का लोगो हम यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो इस तरीके से रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना ये भी एक इफेक्ट यहाँ पे कोल्ड वार के कारण हुआ था। उसके बाद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, इस मूवमेंट को स्टार्ट करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो इंडिया का है। मीन्स इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू contributed for this movement. When we think about the meaning of this movement, first of all, see the meaning of that movement. In the period of the Cold War, while the world was becoming bipolar, there were some countries which did not want to join the superpower rivalry. Actually, we have seen bipolarization has taken place. So due to bipolarization, world was divided into two groups. At that time, there were some countries, they were not thinking, they were not ready to go either America or Russia. They were thinking that we have not to involve in both categories, we have not to go in both groups. So they decided or they created another group. That group is called non-alignment. तो ऐसे कुछ कंट्रीज थे कि जो अमेरिका के साथ में भी जाना पसंद नहीं करते थे और सोवियत यूनियन के साथ में भी जाना पसंद नहीं करते थे। तो उन कंट्रीज ने अपनी एक खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसको नॉन अलाइनमेंट कहा जाता है।
अब ये नॉन अलाइनमेंट कहाँ से शुरू हुई है, इसको लीड किसने किया है, इसमें कौन से कंट्रीज थे, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अब ये जो एशियन कॉन्टिनेंट्स और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में जो कंट्रीज थे जो कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में उनको इंडिपेंडेंस मिला था, जैसे कि इंडिया को 1947 में, मतलब सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में ही हमें इंडिपेंडेंस मिला था। तो ये जो कुछ कंट्रीज थे एशियन कॉन्टिनेंट में और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ये सब कंट्रीज इकट्ठा आ गए और उन्होंने अमेरिका के साथ में भी जाना पसंद नहीं किया और सोवियत यूनियन के साथ में भी जाना पसंद नहीं किया, और उन्होंने एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जो कि नॉन अलाइनमेंट उसको कहा जाता है। अब ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, तो 1961 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, और इसकी लीडरशिप करने का काम जो था वो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब इनकी तस्वीर हम यहाँ पे देख सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके कंट्रीब्यूशन के माध्यम से इन्होंने ही सब कंट्रीज को इकट्ठा लाया और ये तीसरी मतलब थर्ड तरीके की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। उसके बाद यूगोस्लोविया के जो प्रेसिडेंट थे ये भी इसका एक पार्ट थे, मार्शल टिटो। उसके बाद दूसरे जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे गमाल अब्दुल नसीर, ये भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट थी। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया डॉक्टर सुकार्नो, ये भी इस मूवमेंट का पार्ट थे। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ गाना, यहाँ के क्वामे नुक्रामा, ये भी इस मूवमेंट का पार्ट थे। तो ऐसे अलग अलग कंट्री के अलग अलग प्रेसिडेंट यहाँ पे एक साथ आ गए और उन्होंने एक अपनी सेपरेट थर्ड तरीके की एक तीसरी मूवमेंट यहाँ पे चलाई थी जिसको कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहा गया। मतलब कुछ कंट्रीज थे कि जो अमेरिका के साथ में भी नहीं गए और रशिया के साथ में भी नहीं गए, वो अलग रह के उन्होंने एक तीसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, थर्ड ग्रुप बनाया जिसको कि नॉन अलाइनमेंट ग्रुप कहा जाता है। अब इसका इवैल्यूएशन हम देखेंगे नॉन अलाइनमेंट ग्रुप का, तो इनके क्या प्रिंसिपल्स थे, कौन से टीनेट्स थे, उसके बारे में हम देखेंगे। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो कोलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म और रेसिज्म, ये तीनों जो वर्ल्ड लेवल की जो प्रॉब्लम्स है इनको अपोज करती है। कोलोनियलिज्म, उसके बाद इंपीरियलिज्म और रेसिज्म जो कि वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम है, इसको अपोज करती है। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कंट्री के बीच में जो बॉर्डर इश्यूज होते हैं, तो इसको सॉल्व करने में ये ऑर्गेनाइजेशन किस में बिलीव करती है, तो शांति से और निगोशिएशन के माध्यम से वो प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए, तो इसमें ये बिलीव करती है, ना कि वार करने का। उसके बाद ह्यूमैनिज्म, ग्लोबल पीस और इक्वालिटी, इन प्रिंसिपल्स को भी सपोर्ट करने का काम इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किया जाता है। उसके अलावा डिसआर्मामेंट, मतलब वेपन्स का यूज़ ना करने का और शांति से प्रॉब्लम सॉल्व करने का, प्लस ह्यूमन राइट्स को नर्चर करने का। उसके बाद जो पुअर कंट्रीज़ है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उनकी मदद करने के, ऐसे कुछ जो तत्व है, कुछ प्रिंसिपल्स है, उसको सपोर्ट करने का काम इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद जो पुअर कंट्रीज है, अंडर डेवलप कंट्रीज है, उनको इंटरनेशनल लेवल पे एक रिस्पेक्ट मिले, उनको एक रिस्पेक्टफुल प्लेस मिले, तो इसके लिए भी काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन नॉन अलाइनमेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जो कि है एंड ऑफ द कोल्ड वार। अब यहाँ तक हमने देखा कि जो अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स हमने देखे, क्रिएशन ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, बिपोलराइजेशन, आर्म्स रेस, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये अलग अलग इफेक्ट्स हमने देखे हैं जो कि कोल्ड वार के कारण हुए थे। अब कोल्ड वार ख़त्म कब हुआ, एक्चुअली वो 40 से मतलब 40 to 45 ईयर्स तक ये वार जो था अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में वो चलता ही रह गया। अब ये ख़त्म कैसे हो गया है उसके बारे में हम देखेंगे। द सोवियत यूनियन adopted the policy of opening up the economy. The state loosened up its control of the economy. मतलब 1991 में जो कोल्ड वार था वो ख़त्म हो गया
और रशिया ने, सोवियत यूनियन ने अपनी जो इकोनॉमी है वो ओपन कर दी थी। तो इसके कारण जो कोल्ड वार था वो ख़त्म हो गया। उसके अलग अलग रीजंस भी है, वो हम आगे चल के देखने वाले हैं। द देन प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन माइकल गॉर्बेचोव implemented the policies of perestroika, restructuring and glasnost openness। तो तब के जो प्राइम मिनिस्टर थे रशिया के, माइकल गॉर्बेचोव, इन्होंने दो प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट किया। एक था पेरेस्ट्रोइका मतलब रिस्ट्रक्चर करना अपने इकोनॉमी को, दूसरा था ग्लासनॉस्ट मतलब ओपननेस मतलब अपने इकोनॉमी को ओपन करना। तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी, अपने कंट्री की तरफ ध्यान दिया उस समय के प्रेसिडेंट ने। उसके बाद ड्यू टू दीज पॉलिसीज द कंट्रोल ओवर द मीडिया रिड्यूस्ड। तो ये जो ओपननेस, रिस्ट्रक्चर्डनेस, तो इसके कारण जो मीडिया था उसके ऊपर का कंट्रोल भी खत्म हो गया। मतलब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ पे फॉर्म होना शुरू हो गया था। इसके कारण वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टार्ट हो गए थे। अब इसके हम आगे दूसरे भी पॉइंट्स है, उसके ऊपर हमारा ध्यान फोकस करेंगे। As the East European countries under the influence of the Soviet Union adopted the capitalist and democratic paths, the regimes there changed। अब जो वार्सो पैक्ट में जो शामिल हुए जो ईस्टर्न साइड के कंट्रीज थे, उन्होंने सोशलिस्टिक गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्म नहीं किया, उन्होंने सोशलिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया, तो उन्होंने कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट किया। कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट वहाँ पे उन्होंने फॉर्म किया। मतलब जो रशिया की, मतलब सोवियत यूनियन की जो आइडियोलॉजी थी उसको उन्होंने नकार दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कैपिटलिस्टिक और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वही उन्होंने वहाँ पे फॉर्म किया था। The Soviet Union disintegrated and several new nations were created out of it. Russia was the biggest country in the Soviet Union। अब यहाँ पे दूसरा इफेक्ट हम देखेंगे, एंड वार, जो कोल्ड वार था वो एंड क्यों हुआ, तो दूसरा इफेक्ट था कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन जो कि बहुत सारे कंट्री का एक यूनियन था, छोटे छोटे कंट्रीज इकट्ठा आके उसको USSR मतलब सोवियत यूनियन कहा जाता है। तो इसका क्लासिफिकेशन हो गया, उसमें से सभी छोटे छोटे कंट्रीज अलग हो गए और उसमें का एक सबसे बड़ा जो कंट्री था वो रशिया, ये भी अलग हो गया। मतलब वहाँ पे सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, उसके कारण भी जो कोल्ड वार था वो खत्म हो गया। अब ये सिचुएशन होने के बाद अभी पोस्ट कोल्ड वार वर्ल्ड, अभी कोल्ड वार होने के बाद का वर्ल्ड कैसा था उसके बारे में हम देखेंगे। अमेरिका रिमेन द ओनली सुपर पावर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब पहले पॉइंट में दिया है कि अमेरिका अकेला एक सुपर पावर बना हुआ है, मतलब यूनिपोलर सिस्टम यहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि रशिया ने कोल्ड वार स्टार्ट किया था सुपर पावर बनने के लिए, लेकिन 1991 में कोल्ड वार ख़त्म हो गया और जो इच्छा थी रशिया की, मतलब सोवियत यूनियन की, कि वो सुपर पावर बने, उन्होंने वो छोड़ दी और बाद में अमेरिका अकेला एक कंट्री बना रहा कि जो सुपर पावर था। दूसरा पॉइंट है अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर प्रिवेल्ड फॉर द ग्रोथ इन ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन एंड अमंग नेशंस। Capital, labor, market and information circulated throughout the world. Ideas spread freely as well। अब यहाँ पे क्या चेंजेस आ गए थे, वर्ल्ड लेवल पे क्या चेंज आ गए थे पोस्ट कोल्ड वार के समय पे। तो जो आइडियाज़ थी, लेबर थे, कैपिटल था, मार्केट थे, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका स्प्रेडिंग चालू हो गया था। फ्रीली वो आइडियाज़ को, लेबर्स को, कैपिटल को स्प्रेड होने दे रहे थे, सर्कुलेट हो रहा था। तो ये अच्छी पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे पोस्ट कोल्ड वार के समय पे आई थी। As all nations of the world decided to give priority to trade relations, the idea of giving aid to other nations fell behind। अब यहाँ पे नई आइडिया को एक्सेप्ट किया गया था जो कि ट्रेड की थी। मतलब जो कंट्रीज थे उनके बीच में ट्रेड स्टार्ट हो गया था और एक दूसरे की पहले मदद जो करते थे वो मदद अभी पीछे हो गई। मतलब अभी कोई भी किसी को मदद नहीं करता था, तो एक दूसरे के साथ में ट्रेड करने लगे थे। Instead, efforts began to be made to establish economic relations. The description of a country which was opposed to another has now
चेंज्ड फ्रॉम एनिमी नेशन टू राइवल नेशन। मतलब जो कंसेप्ट थी पुरानी वो चेंज हो गई। मतलब जो एड्स दिया करते थे, हेल्प किया करते थे, उसके जगह पे यहाँ पे इकोनॉमिकल ट्रेड स्टार्ट हो गए। पहले जो एनिमी कंट्रीज हुआ करते थे उनमें अभी राइवलरी स्टार्ट हो गई, कंपटीशन स्टार्ट हो गया और कंपटीशन के माध्यम से दोनों कंट्रीज में डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलने लगा था। तो इस तरीके से अलग अलग चेंजेस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो पोस्ट कोल्ड वार के समय पे आए थे। दूसरे यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स हम देख सकते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज़ इंक्रीज्ड। द यूनाइटेड नेशंस नाउ हैड टू टेक मोर कॉन्क्रीट स्टेप्स टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। हमने देखा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय पे लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन वो उतना पावरफुल नहीं था, मेंबर कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, इसलिए सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूएनओ इस्टेब्लिश हो गया। तो यूएनओ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अभी बढ़ चुकी है और ग्लोबल पीस के लिए उसके माध्यम से काम किया जाता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉस्टरिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, जेंडर equality and management of natural calamities now acquired a global dimension। अब ये जो वर्ल्ड लेवल पे जो इश्यूज होते हैं जैसे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, फॉस्टरिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जेंडर इक्वालिटी ही, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, तो इन सब को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे यूएनओ को है। तो इनको एक ग्लोबल डायमेंशन मिल चुका है। अभी हम नई एक कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे जो है ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन मतलब टेक्नोलॉजी, कैपिटल, लेबर, इंफॉर्मेशन, ये सब ऑल ओवर वर्ल्ड में फ्रीली सर्कुलेट होना मतलब ग्लोबलाइजेशन। उसके लिए कंट्री की बॉर्डर या उस कंट्री की जो सीमाएं हैं वो इस टेक्नोलॉजी को नहीं रोक सकती है, वो फ्रीली कहीं पे भी सर्कुलेट की जा सकती है। इस तरीके के सिस्टम को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे पॉइंट वाइज। तो फर्स्ट वन पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे, आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वार ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज बिकेम मोर ओपन। कोल्ड वार के बाद में जो कंट्रीज के जो रिलेशनशिप थे, इकोनॉमिकल रिलेशनशिप, वो बहुत ही बेहतर बन चुके थे, क्योंकि 1945 से लेकर 1991 तक कोल्ड वार चलता रहा। बाद में रशिया को समझ आ गया कि उनको अपने कंट्री की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए 1991 में उन्होंने अपने इकोनॉमी को ओपन कर दिया। तो वैसे ही सभी कंट्रीज ने अपने अपने इकोनॉमीज को ओपन कर दिया। 1991 में हम देखते हैं कि इंडिया ने भी अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में अटैच किया था। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे, एज बीन मेंशन बिफोर, कैपिटल, लेबर, मार्केट्स एंड इंफॉर्मेशन बिगैन सर्कुलेटिंग ग्लोबली। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था ये पॉइंट, the give and take of ideas among people all over the world grew. Due to the revolution in information technology, different events and developments began to be known everywhere. The boundaries between nations did not remain as sacrosanct as they were before। मतलब पहले जो कंट्री की बॉर्डर थी वो टेक्नोलॉजी को, आइडिया को, उसके बाद कैपिटल, लेबर्स को फ्रीली सर्कुलेट नहीं होने दिया करती थी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कारण आइडियाज़, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी ये फ्रीली सर्कुलेट होना पॉसिबल हो गया। और जो कंट्रीज़ थे उनमें जो इकोनॉमिकल रिलेशनशिप थे उसको ग्रो करना मतलब उसको बढ़ावा देना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद द इकोनॉमीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज गॉट लिंक्ड विथ ईच अदर, ट्रेड इंक्रीज्ड, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ग्रेव, प्लेंटी ऑफ प्रोडक्ट्स बिकेम अवेलेबल इन द मार्केट्स। अब हम देखेंगे कि जो इकोनॉमीज थी वो अलग अलग कंट्री के साथ में लिंक हो गई थी। जिस कंट्री में किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता है वो बाहर से मंगाती थी, मतलब इंपोर्ट करती थी। जिस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है उस कंट्री में वो बाहर की कंट्री को एक्सपोर्ट करती थी। तो इसके कारण क्या हो गया है कि
वर्ल्ड लेवल पे जो कंट्रीज थे उनकी जो इकोनॉमी है वो इंटरलिंक्ड हो गई है, एक दूसरे के साथ लिंक हो चुकी है। इसलिए जो मार्केट में कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि वो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होती है लेकिन हमें वो अवेलेबल होती है। मतलब ऐसी चीज़ें जो कि हमारे यहाँ पे उनका प्रोडक्शन नहीं होता है वो भी चीज़ें हम हमारे डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ है। प्रोडक्ट्स बिकेम अवेलेबल इन द मार्केट्स बट एट द सेम टाइम द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच नेशंस डिड नॉट रिड्यूस। अब यहाँ पे एक ड्रॉबैक है ग्लोबलाइजेशन का जो कि हमें यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा कि जो गैप था पुअर और रिच कंट्री के बीच में वो वाइडन हो चुका है। मतलब जो रिच कंट्रीज थे वो रिच होते चले गए और जो पुअर कंट्रीज थे उनको ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिला और वो पुअर होते चले गए। तो ये एक ड्रॉबैक हम यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ देख सकते हैं। कंक्लूजन ऑफ दिस लेसन, मतलब हम यहाँ पे एंड करेंगे हमारे लेसन को कि हमने यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार और उसके बाद कोल्ड वार, उसके इफेक्ट्स, ग्लोबलाइजेशन, ये सब चीज़ों के बारे में हमने जानकारी ली है। अभी हम कंक्लूजन करेंगे। इस चैप्टर में हमने 1945 के बाद मतलब जो कुछ भी कोल्ड वार था उसके इफेक्ट्स थे इसके बारे में जानकारी ली, ग्लोबलाइजेशन के बारे में जानकारी ली। उसके बाद हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें उसके बारे में हमें शॉर्टली हमने इंफॉर्मेशन ली है इस लेसन में, लेकिन अगले वीडियो में हम उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं।